थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो आज का जो सेशन है, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं ना करने के लिए। तो ये टास्क करना है, वो टास्क करना है। तो आज का पर्पस ही यही है, एंड ऑफ दिस वर्कशॉप अपना पेपर और पेन साथ में रखे अगर पॉसिबल है तो। एंड जब होगा ना वर्कशॉप का, तो आपके पास बहुत सॉर्टेड एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या काम मुझे करने हैं, क्या नहीं करने, क्या कब करने। तो दिस इज माई गोल एंड आई बी आई एम श्योर हम एक चीज तो इस सेशन से अच्छे लेकर ही जाएंगे, पूरा प्लानिंग करके जाए। ठीक है, तो आज के सेशन का क्या नाम रखा है हमने, केओस टू क्लैरिटी। ठीक है, जो भी अपने दिमाग में केओस होता है ना बातों को, मतलब जो भी काम को लेकर, उसको हम क्लैरिटी के साथ कैसे करके जाएंगे। तो ट्रीट इट एज अ रीसेट बटन। ठीक है, अटेंशन रखिए, हो सके तो अपना फोन साइड में रखिए जिनको पॉसिबल है ऑफ कोर्स, एंड एक पेपर और पेन साथ में रखेंगे। ठीक है, तो बिफोर वी बिगिन, लेट्स डू अ वेरी क्विक एक्सरसाइज। हम चेक करते हैं, जैसे ये 1 to 5 की रेटिंग होती ना, लेट्स चेक दैट what is our vibe today, right? What do we feel about our task today? Do we feel we are sorted, or do we feel कि हमें कि काम करने की जरूरत है या नहीं है, कि सब कुछ आ रहा है, टोटली स्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रगलिंग कि हमें, हमारे पास लिस्ट है लेकिन पता नहीं कि कैसे करना है, फिर हाँ हम मैनेज कर रहे हैं, देन मोस्टली सॉर्टेड, एंड उसके बाद फुल्ली जेन कि सब कुछ आ रहा है, सब कुछ पता है कैसे करना है। ठीक है, मुझे बता देना जब आप, राइट, बट मेजोरिटी आर इन द फर्स्ट टू, दैट वी आर स्ट्रगलिंग और वी आर स्ट्रेस्ड अबाउट हाउ टू डू इट। ठीक है, तो लेट्स सी नाउ दैट हाउ आर वी गोइंग टू गेट टू अ mode where we can do everything and in a very sorted manner. Okay, okay, and this is the agenda for today. So we will be starting by understanding why we feel like, we did a poll right now, right? And we know कि हमें stress होता है बातों से, या जो भी काम कर रहे हैं उससे हमें stress feel हो रहा है. So why do we feel loaded? Why do we feel that we are stressed? And then we will try to break down that stress, and we will see how can we have a different categorization in that, and how do we build, let's say, healthy habits and task in it. Okay, so, and how do we start with that? So this is what we felt, right, sometime back when we did this exercise. And why do we feel that? It's because there is a lot of information that is stored in our brain, and that is the main reason for our stress. It's not because we cannot do the task. We all are capable of doing tasks, but the main reason over here is there is information that is like lot of random information. ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वो लाना है, ये खरीदना है ना, इससे बात करनी, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है अपने दिमाग में, एंड दैट इज द मेन रीजन फॉर आवर stress rather than doing the task itself. And now we will see in a step by step how do we do it. So we will take 5 minutes. There are going to be two activities. Okay, first is this, and there'll be one more. Now all of us will take 5 minutes, take a paper and pen, and what we will do is we'll do a brain dump. So it's not a dumb brain, okay, but what we are doing is literally dumping all the information that we have on a paper and pen. For example, now I have to cook a dinner, right? I have to pay my tax. I have to do some bills. And it could be anything. Try to make it clear. अगर आपको डिनर करना है तो डिनर का आपका मेन्यू क्या है, try to go a little bit, have a clarity, because it will help you later with the prioritization. So let's take 5 minutes, okay, with everyone, and I will also do it with you. And on a paper and pen, we will write all tasks. No judgment right now, okay? Just capture जो भी आपके दिमाग में है ना, ये मुझे काम करने हैं, just write it down, everything. ठीक है? This was a live session, and all the participants took 5 minutes to write down the task that they have on their mind. And Guys, at least now you don't have that fear कि I will forget doing this task, right? How many, like any one of you want to share that how you feel while writing it down? Because for me, it really helps. It is very powerful when you put it on a paper and pen. Even now, when I was writing with you guys, I knew there are two things which I forgot, and I had to take some decision. So now it's on my paper, and it's helping me. किसी Okay. अब ये जो हमने एक्सरसाइज की, जैसे कि सर ने शेयर किया, आपने भी शेयर किया, इससे क्या होता है, हमारे दिमाग का जो नॉइस है ना, वो क्लियर होता है। अब हमारे दिमाग में थोड़ी सी जगह बन गई है, क्योंकि अब तक क्या है, काम करने हैं करने हैं करने हैं, लेकिन वो सब दिमाग में ना ओवरलोड हो जाता है।
जैसे स्टोरेज में हम बस चीजें डाल रहे देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, उसको ऑर्गेनाइज नहीं किए करते हैं, कौन सी चीजें हमें पहले निकालनी पड़ेगी वो सामने नहीं रखते, तब तक वो अच्छा भी नहीं दिखता और समझ भी नहीं आता। सिमिलरली हमने क्या किया, अभी डंपिंग किया है, पूरा ब्रेन डंपिंग, एवरीथिंग इज ऑन अ पेपर पेन। अब लेट्स अंडरस्टैंड कितने लोगों ने अभी हमने अब हम वी विल डू डिफरेंशिएशन। व्हाट इज अ डिफरेंशिएशन? सो देयर इज अ टास्क एंड देयर इज अ हैबिट, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, पहले समझते हैं टास्क और हैबिट ये है क्या, ठीक है? मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है, गिव मी अ मिनट। ओके, इट विल कम। तो हमें क्या लगता है कि ये सारी जो चीजें है ना, ये हमें टास्क है ना? तो टास्क क्या होता है? एक स्पेसिफिक एक्शन जो हम कॉन्शियसली परफॉर्म करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम टास्क जो होते हैं वो वन टाइम होते हैं, है ना? टैक्स भरना वन टाइम टास्क है। अब मान लो, अब किसी को ईमेल भेजना, दिस इज वन टाइम टास्क। आपका ग्रोसरी लाना, राइट, वो वन टाइम टास्क। सो टास्क आर वन टाइम, बट हैबिट्स जो है अपनी, दोज आर रिपीटेटेड बिहेवियर, दोज आर फॉर्म्स ओवर द टाइम। तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक बन जाते हैं, आपके डेली रूटीन्स बन जाते हैं, राइट? एंड व्हाट इज रूटीन? रूटीन इज इवन मोर पावरफुल, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिट। सो इसको समझना बहुत जरूरी है। जब जब तक हम सारी चीजों को टास्क यानी कि एक काम की तरह ट्रीट करेंगे, वी विल ऑलवेज फील स्ट्रेसफुल। जैसे कि अब कि वॉक करना, राइट, जब तक हम इसको काम की तरह ट्रीट करेंगे, मेडिटेशन करना, जब तक हम बोलेंगे हाँ सुबह मुझे उठ के 1 घंटा मेडिटेशन करना है, दैट विल नेवर गेट इजी। सो इन आवर माइंड इट हैज टू बी वेरी क्लियर टास्क, बिकॉज टास्क के लिए ना बहुत सारा मोटिवेशन चाहिए होता है ना। उसके लिए हम बोलते हैं कि टाइम निकालना पड़ेगा, ओवरवेल्म फील होता है, प्रेशर फील होता है। लेकिन हैबिट जो है ओवर द टाइम हमें वो इजी हो जाती है करना, ठीक है? तो अब हम क्विकली, वेरी क्विकली, जो भी हमने लाइंस लिखी, इन फ्रंट ऑफ ईच लाइन वी विल राइट टी और एच, ठीक है? तो इसका मतलब क्या, क्या ये टास्क है या ये हम इसको हैबिट में फॉर्म करना चाहते हैं? और इसका पर्पस क्या है? एक बार हमने इसको क्लासिफाई कर लिया, क्या ये टास्क है, क्या ये हैबिट है, फिर वी विल हैव सम टिप्स एंड ट्रिक हाउ टू डू योर टास्क इफिशिएंटली एंड हाउ टू डू योर हैबिट्स इफिशिएंटली, ठीक है? तो आई विल गिव यू 2 minutes और मे बी इट कैन बी लेस देन दैट, बट हम क्या करेंगे, वी विल आस्क अ क्वेश्चन, इज इट अ वन टाइम थिंग? फॉर एग्जाम्पल, सर आपने जैसे बोला कि मुझे डिसीजन लेना है, राइट, किसी चीज का, वी विल राइट इट एज टी, बिकॉज दैट इज माई वन टाइम थिंग। एंड हैबिट, जैसे रीडिंग करना, मेडिटेशन करना, वॉकिंग करना, दिस इज योर हैबिट ना, सो वी विल राइट इन फ्रंट ऑफ दैट एच। तो क्विकली अपने जो भी आपने लिखा है उसके पीछे आगे टी एंड एच। The honest guy has some opinion. I can say H. अर्चना जी, इसमें मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। ये टास्क एंड हैबिट जो है, हैबिट तो फॉर्म होती है ना, मतलब एक करेक्ट। मतलब उसको बनाना पड़ता है हैबिट को। हम्म। बट कई बार क्या होता है, हैबिट जैसे बनाना है तो हम्म सपोज 3 दिन 4 दिन या 7 दिन 10 दिन तक वो हैबिट, एज ए हैबिट, जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाना है मेरे को, तो हम्म वो हम्म 4 5 दिन जाऊंगा मैं, 7 दिन हम्म जाऊंगा, उसके बाद फिर जाने का है तो मन नहीं करेगा, या कुछ हम्म कारण से कुछ और काम आ गया तो वो छूटता हम्म जाता है, तो फिर वो हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो हाँ हाउ टू अवॉइड दिस, या उसको मतलब कैसे उसमें हम मोटिवेटेड रहे कि नहीं ये काम मेरे को, या ये हैबिट को बिल्ड ही हम्म। करना है। हाँ, इसके इसके ऊपर अभी है, आगे हम इसके बारे में ही बात करेंगे। बहुत सारी बातें होंगी इसके बारे में, इसलिए हमने पहले क्या किया, सारा समझ लिया क्या हमें करना है। उसके बाद हमने किया अपने टास्क क्या है। अब हम टास्क भी करें, देखेंगे कि टास्क हमें कैसे प्रायोरिटाइज करने हैं। हम ये देखेंगे कि वो टास्क को हम कैसे इफिशिएंटली कर सकते हैं। और फिर हम हैबिट्स के बारे में भी बात करेंगे कि हैबिट्स को कैसे फॉर्म किया जाएगा, कैसे बिल्ड किया जाएगा। तो जल्दी ही आएगा आपका मन से, ठीक है? कार वॉश करना, ओके, मंदिर साफ करना, हेयर कट, ये टास्क होगा आपको हैबिट। आपको हाँ बोलिए।
हाँ। कि मतलब इसमें ऐसी जैसी चीजें हैं जिसको हमको हम्म। हैबिट तो बनाना है, लेकिन हम उसको टास्क के जैसे ले रहे हैं, ऐसा हाँ। लिखना है हाँ। ऐसी कि जो जैसे टास्क है। हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे अभी ऑफिस जाना तो एक मतलब एक रेगुलर बेसिस पे है हम्म। हम्म। हमारा, तो हम्म। वो तो एक हैबिट के इसमें ही आएगा। यस, वो हैबिट ही आएगा कि क्योंकि वो हम आपका क्या रेगुलर है समझते ना। हैं ये, हाँ, ये हम क्या इम्पोर्टेंट है। समझते हैं, ये ज्यादा हम इम्पोर्टेंट है। क्या समझते हैं और हम इसको क्या बनाना चाहते हैं। अगर ऑफिस जाना आपके लिए एक टास्क लग रहा है, बहुत टीडियस स्ट्रेसफुल लग रहा है, क्या हम इसको हैबिट हम्म। बनाए जो हम एफर्टलेसली कर सके, है ना? तो उसको एच लिखो आप। अच्छा। जैसे अभी कुलदीप का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कार वॉश करना, मंदिर साफ करना, हेयर कट करा के जाना, है ना, ये टास्क होगा या हैबिट में आएगा? तो आप इस सबसे पहले कार वॉश करना, क्या आप डेली करते हो ये चीज? नहीं ना, आफ्टर 2 डेज या 3 डेज ऐसे होगा। या मंदिर साफ करना, कैसे आप वीकली करते हो या हफ्ते में 2 बार करते हो? वो हाँ, बोलिए। मतलब मंदिर जैसे अपना रूम साफ करना, मंदिर करना, ये तो हम्म। 2-3 दिन में करना होता है, तो ये हैबिट में टास्क नहीं है। हम्म। आप हैबिट में डालो इसको। हैबिट और में। हम बात, हाँ, हैबिट में डालो, और हम इसमें बात करेंगे हम इसको हैबिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फिर, ठीक है। है ना? हम्म। हेयर कट आप टास्क में डाल सकते हो या मंथली हैबिट में डाल सकते हो, जैसे कि 1 अगस्त, जो भी 1 ऑफ द मंथ है, मुझे हेयर कट करना है ना। तो देर इज अ वे टू हम्म। लुक एट दैट। ठीक है। तो अब हमने क्या किया? हमने ये देखा है कि किस चीज में हमें एक्शन लेने की जरूरत है और किस के लिए हमें कंसिस्टेंसी की जरूरत है। ठीक है। टास्क के लिए हमें एक्शन करने की जरूरत है, लेकिन हैबिट है उसके लिए हमें क्या चाहिए? जैसे मोहन सर ने बहुत अच्छे से बोला कि ये हमें फॉर्म करनी पड़ेगी ना, तो ये हमें, इसके लिए हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। तो ये हमें अभी क्लैरिटी आ गई है। ठीक है। अभी हमारा मोस्ट ऑफ द काम हो चुका है। अभी मैं बहुत बड़बड़ करूंगी और आप मुझे सवाल पूछना। ठीक है। ये बहुत एक्सरसाइज जरूरी थी हमें समझने के लिए, कौन से हमारे टास्क है, कौन से हमारे हैबिट्स है। अब हम देखेंगे जो भी हैबिट्स हमें, सॉरी, जो भी टास्क हमने बोले हैं, सिर्फ टास्क पे फोकस करेंगे। उसको हम प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे? देर आर मेनी मेनी प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक्स दैट आर अवेलेबल। एक सिंपल तरीका है, अगर आपकी लिस्ट छोटी है, मान लो, व्हाट वी कैन डू इज मार्क 3 क्रिटिकल टास्क दैट यू वांट टू डू इट। तो उसको एक सर्कल बना लीजिए। जैसे कि मुझे अभी मेरे पास 1 to 10 की लिस्ट हुई है, जबकि मैं रोज अपने टास्क देखती हूँ फिर भी। ठीक है। तो मैंने अभी 1, 5 और 8, मैंने अपने उसको 3 को सर्कल किया है कि ये जो टास्क है इनके ऊपर मुझे काम करना ही करना है। ठीक है। और ये जो हमारी लिस्ट है आपने बनाई है, बाद में चाहिए तो आप अच्छे से दूसरे पेपर पे या एक बुक बना लीजिएगा। हमें क्या करना है, ये लिस्ट को रोज रिव्यू करना है। जैसे मेरा क्या रिचुअल है ऑफिस के लिए, मैं बता सकती हूँ। मेरा 9 to 6 ऑफिस होता है। जैसे मैं लॉग इन करूंगी, 15 मिनट मेरे होते हैं सिर्फ चेक करने के लिए कि मुझे क्या काम करना है और आज की क्या मेरी प्रायोरिटी है। ठीक है। तो ये रिव्यू करना बहुत जरूरी है एवरी डे। एंड इसको सिर्फ सुबह नहीं, रात में भी, लाइक 5:45, देन आई विल अगेन चेक कि जो मेरी आज की प्रायोरिटी थी, क्या मेरा वो काम हो गया है या मुझे दूसरे दिन के प्रायोरिटी लिस्ट पे डालना है। तो ये हमें सबको करना है, हमें ये टास्क लिस्ट मेंटेन करनी है और रोज उसको रिव्यू करना है। रोज ना हो सके, चलो किसी कारण की वजह से, या आपको लगता है कि चलो मेरा एकदम स्मूथली हो रहा है, तो एटलीस्ट एंड ऑफ हफ्ते में 2 बार करो, एंड ऑफ वीक चेक कर लो, बट ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स। ये जो आजकल है ना, बहुत फैंसी चल रहा है ना, आई वांट टू बी प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिविटी इज नॉट कि आप कितना काम करते हो, बट क्या आप वो काम करते हो वो जो मैटर करता है। ओके। तो ये तो हुई सिंपल मेथड। ठीक है। अब इसके बाद लेकिन हम लोग कहाँ है ना, हम लोग बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेट करते हैं ना। हमारे पास बहुत सारी ह्यूज लिस्ट होती है। तो लेट्स सी हाउ टू डील विथ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स एंड व्हेन देर आर सो मेनी थिंग्स ऑन आवर प्लेट। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज, लेट्स से, ये जो फॉर्मूला है और ये जो टेक्निक है, दिस इज कॉल्ड आइजनहावर मैट्रिक्स। शायद आप लोग को पता भी होगा ये क्या है। ये 34th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड ही वाज आल्सो 5 स्टार जनरल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो उनको तब क्या दिक्कत आई, व्हेन देयर वाज अ वॉर गोइंग ऑन एंड
देयर हंड्रेड्स ऑफ डिसीजंस उनको करने होते थे, हंड्रेड्स ऑफ चीजें उनको करनी होती थी, ठीक है। तो उन्होंने ये टेक्निक तब इन्वेंट की, या जो भी उनको लगा था मैं फोकस वही करूं जो ट्रूली मैटर करता है, ठीक है। तो दैट इट वाज इन्वेंटेड देयर। एंड इसके बारे में बहुत जगह पे बात की गई है, जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आई हैव बीन पर्सनली यूजिंग दिस सिंस ईयर्स in my job, and I know many people like Barack Obama and people in India, many people are using this technique. It's very effective. तो जब वर्ल्ड लीडर का काम इससे आसान हो सकता है, तो अपना तो होगा ही होगा। यू माइट फील कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, मैं कैसे करूंगी। तो मैंने क्या किया ना, इसको बहुत सिंपल डे टू डे लाइफ की चीजों में डाला है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज अ लाइफ सेवर व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो ये जो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबको हमको पता है मैथ्स का। तो अर्जेंट टू नॉट अर्जेंट, ऐसे 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। ऐसे बना सकते हो आप लोग, या ये आप बाद में भी कर सकते हो, बट दिस इज तो आपके टास्क को नंबर होंगे ना 1 to 10 जो भी। तो अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करेंगे, ठीक है। जो काम अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है, डू इट नाउ, ठीक है। इस काम के, ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसके ऊपर हमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। लेट मी ऑल्सो ट्राई टू पुट मिनट, कोई तो लिख रहा है शायद साथ में। ओके, सो ये जो क्वाड्रेंट है, राइट, डू इट नाउ। इस कामों के ऊपर किसी की डिपेंडेंसी नहीं रखनी है बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे कि ये बहुत साधारण सा एग्जांपल ले रही हूं मैं ताकि सब लोग उसको रिलेट कर पाए। कुकिंग अ लंच, कैन यू कुक टुमारो एंड ईट टुडे? नो, राइट, यू हैव टू कुक टुडे टू ईट टुडे। सो ये प्रायोरिटी पे है, प्रायोरिटी पे है। अगर कोई बिल है, मान लो, अगर उस बिल का अगर आज ड्यू डेट है, क्या आप कल भर सकते हो? नहीं ना, आपको पेनल्टी लगेगी। डू इट टुडे एंड डोंट डिपेंड ऑन एनी वन एल्स। दिस इज वेरी आई एम सेइंग इट अगेन अगेन, बट दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ स्ट्रेस ऑफ आवर लाइफ कम्स फ्रॉम। बिकॉज हम क्या करते हैं, जो अर्जेंट चीजें है ना, हम दूसरों का वेट करते कि वो हमारे लिए करे। मत करो, आपको लगता है वो मेरे लिए अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो हमें वो करनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट। ओके, तो ये क्या चीज है? जैसे कि साफ सफाई करनी है मुझे, वो मैं कर सकती हूँ, राइट, उसके लिए मैं टाइम कर सकती हूँ। जैसे कुलदीप ने बोला कि कार वॉश करना, मंदिर मंदिर साफ करना, वो इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या वो अर्जेंट है? क्या वो अब मैं नहीं करूंगा तो कुछ हो जाएगा? नहीं ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल डिसाइड, दैट मीन्स वी विल प्लान अ टाइम इन आवर कैलेंडर। ये है एक रिमाइंडर लगा, जैसे कि हर वीक में आप फ्राइडे कर सकते हो, या जो भी आपका दिन आपको लगता है ना थोड़ा लेस हेक्टिक है, यू कैन बुक टाइम इन योर कैलेंडर। आप सबके पास, हमारे पास फोन है, जो भी सैमसंग, आईफोन और एटसेट्रा जो भी है, जीमेल का जो कैलेंडर फीचर है, आई हेविली यूज दैट। तो हम उसमें टाइम ब्लॉक कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, हम आप जो अपने के काम है उसके आगे लिख सकते हो स्केड्यूल। तो मैंने उसके लिए टाइम निकाला है, तो आपका फोन भी आपको रिमाइंडर देगा कि हाँ अभी तुम्हें ये काम करना है। और अगर नहीं हुआ, मान लो किस कारणों की वजह से, जैसे मेरे से कभी नहीं होता है, तो मैं वापस उसको जाके दूसरे दिन के लिए रीस्केड्यूल करती हूँ। इस तरह से अपने ये काम छूटेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड क्वाड्रेंट, विच इज अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है वो काम, ठीक है। तो ये अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट क्या है? जहां पे हम आप दूसरों की हेल्प मांग सकते हैं। जैसे कि मान लो कॉर्पोरेट लाइफ, इफ यू आर अ बॉस लीडर, यू हैव मेनी पीपल टू वर्क फॉर यू। जहां पे हमें लगता है ना कि ये बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है, लेकिन क्या आपको वो करने की जरूरत है? नहीं ना। क्या पता शायद कोई और आपके लिए वो काम कर सकता हो, है ना। तो वहां पे आप दूसरों की मदद ले सकते हो। तो ये आइडेंटिफाई करो कि कौन से टास्क है वो जो इस क्वाड्रेंट में जाएंगे। जैसे कि मान लो घर साफ करना, या आज आज का मैं अपना एग्जांपल बता सकती हूँ कि आज हुआ क्या कि मुझे अभी 11:30 बजे के मेरे टाइम पे ये सेशन है ना, तो मुझे इसके बाद लंच करना है ना। माय डॉटर इज एट होम, तो लंच का जो भी है, तो आई आस्क माय हस्बैंड कैन यू कुक फॉर टुडे। ही बीइंग वेरी सपोर्टिव हस्बैंड, ही सेड यस। तो ये खाना बड़ा खाना बहुत अर्जेंट काम है,
बट इज इट इम्पोर्टेंट कि मैं ही ये करूं? नहीं ना। और मैं किसी से हेल्प मांग सकती हूँ, तो और इफ दे कैन हेल्प मी, फोर्स नहीं करना है, नहीं तू बना ही बना, नहीं बनाए तो आई विल पुट दैट इनटू माय दिस क्वाड्रेंट विच इज डू इट नाउ, मैं खुद कर लूं। ठीक है। उसके बाद होता है नॉट अर्जेंट काम, और जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उनको स्ट्रेट अवे डिलीट कर दो अपने लाइफ से। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि नहीं ये बहुत अभी करना चाहिए। लगता है आपको, जो मान लो कोई टीवी शो आया है, ठीक है, क्या क्या गेन मिलेगा? वैसे भी हम न्यूज चैनल आजकल नहीं देखते, राइट? अननीडेड शॉपिंग, कोई फेस्टिवल आया, चलो उठा के अभी मुझे शॉपिंग करनी है, जरूरत है क्या? कैन यू रिपर्पस समथिंग दैट यू हैव? शायद ये आपको लगेगा कि बहुत लाइफ के बारे में बातें हो रही है, लेकिन आप जब आपकी लिस्ट देखोगे ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो करने की जरूरत ही नहीं है, बस अपने दिमाग में होता है ये करना है, स्ट्रेट अवे कैंसिल कर दो कि ये काम मुझसे नहीं होगा या मुझे करना ही नहीं है। उसका कोई ना ही अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है, बस माइंड में स्पेस रखा है। और आप ना आपकी लिस्ट में बाद में जब भी अपने सेशन के बाद उसको स्ट्राइक ऑफ कर दो कि ये मुझे करना ही नहीं है, शायद मुझे लग रहा था ये काम है। ठीक है। एनी क्वेश्चंस और ऑल क्लियर, ऑल गुड? गुड। चलो, yeah, very happy to hear that. And I will share everything with you, right? So you have always this reference. इसको मैं क्या करती हूँ, मतलब अब तो मेरा बाय हार्ट हो गया, नींद में भी पूछोगे तो आई कैन टेल, बट इनिशियली मैं क्या करती थी, अपने फोन में फेवरेट में सेव करके रखती थी। जब भी मुझे लगे ना क्या ये टास्क मुझे करना है, देन आई आस्क माई सेल्फ ये अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, ओके ठीक है, मुझे ही करना है और अभी करना है। ठीक है। तो अब हुआ हमारा, मान लो हमने प्रायोरिटाइज किए। अब सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू गेट योर टास्क डन। इतने काम है तो हम कैसे करें ना, टाइम तो 24 आवर्स ही है। तो देर इज आई थिंक इलॉन मस्क या किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, इट विल टेक ओनली द टाइम दैट यू विल गिव फॉर अ टास्क। जैसे कि मान लो अगर आप किसी टास्क को बोलते हो कि मुझे 1 घंटे में करना है, तो आप वो 1 घंटे में करोगे, लेकिन आप बोलोगे इसके लिए मुझे 1 दिन चाहिए, तो इसके लिए 1 दिन ही लगेगा। इट्स रियली यू हु डिसाइड्स द टाइम फॉर दैट, राइट? एंड टुडे ऑनवर्ड्स आप क्या करो ना, ये जो आपका टाइम है ना, मानो कि आपका बैंक बैलेंस है, एंड देन सी डू यू रियली वांट टू स्पेंड योर टाइम वेयर यू आर स्पेंडिंग इट। मान लो 1 मिनट भी आप सोशल मीडिया स्क्रोल कर रहे हो, राइट? क्या ये जरूरी है? क्या मेरे अर्जेंट काम छोड़ के मुझे अभी करना ये जरूरी है? ठीक है। तो सबसे पहली चीज, एंड आई एम टेलिंग यू ऑल द थिंग्स दैट आई एम ऑल्सो फॉलोइंग, टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस, साइलेंट योर फोन। ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए। हम मल्टीपल ग्रुप्स में होते हैं, हम क्या होता है व्हाट्सएप, सारे पॉपअप पॉपअप आके रहते हैं, एंड देन देयर इज अ रश टू रिप्लाई। मेरे साथ भी होता है, बहुत होता है। सो एप्स कैन वेट बट योर टाइम कैन नॉट वेट। ठीक है। व्हाट्सएप का रिप्लाई या अभी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, जैसे मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एवरीथिंग इज ऑन साइलेंस। व्हाट्सएप के सिर्फ 1 या 2 ग्रुप है जो कि अनम्यूट करके रखे, एंड इट वाज ऑलवेज ऑन अनम्यूट, एंड दैट्स वन ग्रुप दैट इज आई केप्ट ऑन अनम्यूट, कि अगर सर का कुछ मैसेज आए है ना, तो अगर आपको लगता है वो क्रिटिकल है कोई चीज, तो वो चीजें आप सिर्फ, जैसे फैमिली का ग्रुप है, राइट? फैमिली कितने बार गुड मॉर्निंग ये वो, फैमिली वाले बाद में मुझे डांटना मत, लेकिन होता है ना कि हम लोग रैंडम शेयरिंग करते रहते हैं, और 1 मिनट नहीं लगता, जब भी हम नोटिफिकेशन देखो ना, अपना माइंड इट्स लाइक अ मंकी, इट इमीडिएटली वॉन्डर। सो दिस इज प्रो टिप, टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशंस। उसके बाद डू योर हेवी टास्क इन द मॉर्निंग। जो भी आपके अर्जेंट टास्क होते हैं मॉर्निंग, योर माइंड इज फ्रेश, योर एनर्जी इज वेरी वेरी हाई, सो यूज दिस टाइम फॉर योर इंपॉर्टेंट एंड डीप फोकस वर्क। जैसे मैं क्या करती हूँ, सुबह से 4 से 8 बजे माई फोन इज इन साइलेंट स्लीप मोड। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मुझे कोई भी, पूरी रात में ही होता है बट सॉरी, जैसे रात के 9:45 से लेके सुबह के 8 बजे तक इट्स इन स्लीप मोड। सो वट उसमें क्या होगा, मुझे कोई भी कॉल नहीं आएगा, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, अनलेस आई गो एंड चेक माई फोन। एंड सुबह 8 बजे तक अगर कोई अर्जेंट होगा तो ठीक है ना, वो करेगा, हस्बैंड के फोन पे करेगा कॉल, या तो फिर आप सिर्फ फोन, डायरेक्ट फोन कॉल अलाउ करो। अब केस में वो सेटिंग्स आती है, सारे फोन में आजकल ये सारी सेटिंग्स आती है। उससे क्या होगा, सुबह के 8 बजे तक जो भी आपको हैबिट्स आपकी जो फॉर्म करनी है ना, आपका जो भी मेडिटेशन है, रीडिंग है, ऑल दिस विल हैपन इन द मॉर्निंग टाइम। देन ब्रेन डंप बिफोर यू स्टार्ट। जैसे आज हमने ब्रेन डंपिंग किया, लेकिन क्या पता आपके इसमें कुछ और टास्क आ गए ना, कल कुछ ऐड हो गया, मान लो
जैसे कुलदीप है, उसने और एक पेट्रोल पंप ले लिया, राइट? तो मान लो आपको और एक ज्यादा काम आ गया और कुछ चीजें करनी है, सो स्टार्ट डूइंग ब्रेन डंपिंग ऑन अ वीकली वेरी फ्रिक्वेंट बेसिस. Then there is a technique called Pomodoro that we have started using it and it's very very efficient. इसके लिए वो जो क्या बोलते हैं, जो टोमेटो वाले कुछ आते हैं, अमेजोन पे मिलते हैं, मेरे पास भी है एक, लेकिन वो बहुत आवाज करता है. तो मैंने अभी ऐप डाउनलोड किया है अपने फोन पे, और ऐप ना भी डाउनलोड करो तो भी आप नॉर्मल टाइमर सेट कर सकते हो. तो क्या करना, क्या होता है, 25 मिनट्स का टाइमर लगाओ, उसमें नो डिस्टर्बेंस, ओके, वेदर इट इज योर फैमिली और फोन, नथिंग. Focus only on what you are doing. And this is, trust me, it's very very helpful. मेरे इतने बड़े बड़े काम ये लास्ट के 2 महीने में हो गया है ना कि बस. तो यू स्टार्ट यूजिंग दिस टेक्निक, 25 मिनट्स यू वर्क, 5 मिनट्स, उसके बाद 5 मिनट्स, बिकॉज अपना ब्रेन की भी कैपेसिटी लिमिटेड होती है ना टू गो थ्रू द थिंग्स. देन 5 मिनट्स यू टेक अ ब्रेक. ठीक है, दैट वे योर माइंड विल बी शार्प एंड यू कैन अवॉइड बर्निंग. देन वन टास्क एट अ टाइम. मल्टीटास्किंग इज नॉट प्रोडक्टिविटी. ये जब कंप्यूटर्स नए आए थे तब ऐसे हो गया था ना, लोगों को लगता था कंप्यूटर मल्टीपल टास्क कर रहे हैं ना एट अ टाइम, तो ह्यूमन भी करेंगे, बट दिस इज नॉट गुड फॉर अस. सो एक टाइम पे एक ही काम करो. ये तो हम कितने बार अपने सेशंस में भी हमें समझाया जाता है ना, खाना खा रहे हो तो खाना खाओ, वॉक कर रहे हो तो वॉक करो. लेकिन वॉक के लिए मैं अभी भी, मेरा हो नहीं पा रहा है, मैं हमेशा पॉडकास्ट सुनती हूँ, क्योंकि कहाँ वो टाइम दे ना. बट ठीक है, इनिशियली वी हैव टू एटलीस्ट स्टार्ट. देन ब्लॉक कैलेंडर फॉर क्रिटिकल टास्क. अगर किसी को भी कैलेंडर के लिए कोई भी क्वेश्चन होगा, आई कैन ऑल्सो टॉक टू देम सेपरेटली. दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव. जैसे आज हमारा जो भी सेशन थे, मुझे कल किसी से मिलना, इवन मुझे फ्रेंड से मिलना होता है ना, दैट ऑल्सो टाइम आई ब्लॉक इन माई कैलेंडर. नॉट द रेगुलर फ्रेंड्स, बट होता है ना, कभी किसी को मैंने डिनर पे इनवाइट किया है, कभी किसी के घर पे मुझे जाना है, तो मैं अपने कैलेंडर में वो ब्लॉक कर देती हूँ. एंड मैं उसका, उसमें फीचर भी होता है, डू यू वांट टू गेट नोटिफाई, तो मेरे पास नोटिफिकेशन भी आती है 3 दिन पहले, 2 दिन पहले. बिकॉज देन आई नीड टू प्रिपेयर. अगर मैं किसी को घर पे बुला रही हूँ तो मुझे खाना भी तो बनाना पड़ेगा ना. यू गेट नोटिफाइड. ऐसे नहीं होता लास्ट मोमेंट पे, अरे क्या करूँ, शाम में कोई आ रहा है, मैं क्या बनाऊं, है ना. तो यू विल नॉट हैव दैट हैसल. ठीक है. फिर कीप एन आइडिया लॉग, एंड दिस इज समथिंग आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग. मेरे साथ क्या दिक्कत हो रही थी कि जो हम काम करते हैं, अब साथ में बहुत सारी रैंडम चीजें भी चलती रहती है, दिमाग में ना आइडिया आने लगते. होता है आपके साथ ऐसे कि हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ, होता है ये किसी के साथ कि नए नए आइडिया आते हैं दिमाग में? अरे बहुत होते हैं, इतने होता है ना, होते हैं, हाँ. हाँ. नहाते वक्त, खाते वक्त और हाँ. तो अभी अभी मैं क्या करती हूँ, वेन एवर आई हैव दिस आइडिया, अभी तो कभी कभी होता है मेडिटेशन के टाइम पे भी, एंड आई डोंट नो हाउ टू स्टॉप देम. मैंने क्या किया है, अब एक बुक रखी है मेरे डेस्क पे, एंड उसमें मैं लिखते रहती हूँ. जो भी आइडिया आएगा ना, लिखते रखो. बिकॉज हमें क्या स्ट्रेस होता है, अरे ये तो बहुत बहुत बढ़िया आइडिया है ना, तो इसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए. और वो स्ट्रेस क्या होता है, जैसे आई आई नो व्हाट हैपेंस विद मी, कि ये मैं भूल ना जाऊं, है ना, ये बहुत अच्छी आइडिया है, मैं इसको भूल ना जाऊं, ये मैं कब इंप्लीमेंट करूं. तो कीप अ डायरी, और मे बी बिहाइंड योर टास्क लिस्ट स्टार्ट आइडिया लॉग. आई स्टार्टेड इट एंड ट्रस्ट मी, इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल. जैसे मैंने अपने, मुझे ये सेशन देना है, राइट, तो ये सेशन जब मैं प्रिपेयर कर रही थी इसके लिए, मुझे बहुत आइडियाज आ रहे थे, तो मैंने लिखा मेरा टास्क का सेशन, उसके अंदर 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 कुछ आइडिया आए मुझे. उसके बाद जो कंटेंट क्रिएशन है उसके लिए आइडिया, फिर जो मैं बुक लिख रही हूँ उसके ऊपर कुछ अलग अलग आइडिया. ऐसे सारी सारी अलग अलग चीजें के आइडिया के लिए मैंने एक लॉग बनाया है, और उसमें लिखते रहो. देन वेन एवर यू हैव सम लेजर टाइम, राइट, देन यू कैन गो विजिट एंड सी कि अच्छा ये आइडिया अभी भी वैलिड है, क्योंकि तब तो लगता है कर लेंगे, बट बाद में क्या पता शायद नहीं. कुछ आइडिया ऐसी होगी कि ऐसे लगता है नहीं ये तो अभी के अभी करनी चाहिए, तो आपका वो टास्क भी बन जाएगी अर्जेंट. सो स्टार्ट डूइंग दैट. एंड लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, no guilt zone. So if you miss a task, okay, don't beat yourself over that. It's fine, because हम अपनी एनर्जी सारी खराब कर लेंगे. टास्क होते हैं करने के लिए, ठीक है, राइट, लेकिन इन द एंड इट्स अ टास्क. नो नीड टू क्राई ओवर दैट. इट्स फाइन. स्टार्ट फ्रेश फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट. ओके, एवरी मोमेंट इज योर न्यू चांस. हमें उसके बारे में सोचना नहीं है, अपना प्रेजेंट नहीं खराब करना है by thinking about the past. Okay, any this is for all tasks. अब हम बात करेंगे इसके बाद हैबिट्स की. तो किसी को कुछ क्वेश्चन है इसमें? जैसे, और आज इसके बारे में मैं अपनी पर्सनल शेयरिंग करूंगी. अभी सेशन से पहले 1 घंटा पहले
मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो उसका मुझे मैसेज आया कि मुझे कुछ बात करनी है इस टॉपिक पे, क्या हम बात कर सकते हैं? ठीक है, तो मुझे क्या लगा, ये उससे बात करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या ये अर्जेंट है ना? आई आस्क दिस बिकॉज आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट व्हाट आई एम सेइंग हियर, राइट? देन शी टोल्ड मी ये टॉपिक है, तो मैंने बोला अभी मेरा एक सेशन है, कैन वी टॉक आफ्टर दैट? तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों को छोड़ देना है ना, साइलेंस करना है, मतलब ऐसे नहीं है। तो उनसे कम्युनिकेट भी करना है, नहीं तो हमें ऐसे लगता है नहीं नहीं, टर्न ऑफ नोटिफिकेशन मतलब कम्युनिकेट, नो, टेल देम ओके मैं अभी नहीं बात कर सकती, लेकिन अगर अर्जेंट है तो ऑफकोर्स आई विल, अदरवाइज आई टॉक टू, एंड दे अंडरस्टैंड, ट्रस्ट मी। व्हेन आप ऐसे ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन चालू करोगे ना, इट्स आपका बॉन्ड और डीपर बन जाता है। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। And before that, let's also, I put it this stickies everywhere so that we also know what we learned so far. So from mental clutter, now we have a focus task list. We have those 4 quadrants, we have our circles, we have the tips and tricks how to manage those tasks. And now let's move on to how do we build habits, right? सो हैबिट्स के ऊपर तो बहुत सारी बात हो सकती है, बहुत ज्यादा। तो मैंने ये 1 to 7 ये कुछ टॉपिक्स सिलेक्ट किए हैं। देर इज अ लॉट मोर देन दैट, आई कैन ऑल्सो शेयर आर्टिकल्स लेटर, राइट? जो जो भी अपनी हैबिट होती है, तो हमें हमेशा स्टार्ट स्मॉल, रियली रियली स्मॉल, क्योंकि हमें ना अपनी बॉडी को प्रेशर जोन में नहीं डालना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू स्टार्ट रीडिंग एज अ हैबिट, स्टार्ट विथ 2 page, start with one page, 2 page, 3 page, start very very slowly. Most of people are not able to form habit क्योंकि उनको लगता है बुक रीड करना मतलब 50 पेजेस, वॉक करना मतलब 2 घंटा, हेल्दी हैबिट मतलब डायरेक्टली सब कुछ छोड़ के अच्छा खाना खाना, है ना? तो अगर आप पूरे दिन में हेल्दी खाना नहीं खा रहे हो, एक टाइम का बदलो। फिर it takes, as they say, it takes 21 minutes, right? 20, not minutes, 21 days to form a habit. So start slowly, slowly, slowly. तो हमें 21 days का वेट नहीं करना है, स्लोली स्लोली 7 दिन करो, फिर 1 पेज बढ़ाओ, वॉक के 5 मिनट बढ़ाओ, ऐसे ऐसे आप आपकी 5 मिनट तो हम निकाल सकते हैं ना ये चीजों के लिए, खाना खाने के बाद 5 मिनट, you start doing that. Then there is a very good technique, attach to a routine, and I started doing it. So it's in a book, Atomic Habits. उसके बाद मैंने ये चालू किया, 2 हैबिट्स को कपल करना। जैसे कि सुबह मेडिटेशन हो गया अपना, उसके बाद मैं अपनी किताब मेरे साइड में ही रखती हूँ कि वो किताब के मुझे 10 पन्ने पढ़ने हैं, या मुझे जर्नलिंग करनी है। आजकल मैं आई डू जर्नलिंग, हमें आजकल बहुत लिखना पड़ता है ना हाथ से, तो आई कीप माई जर्नल on my desk in the night so that whenever I wake up, then I will immediately do my meditation and do the journaling. So that's a trigger. जो लड़कियां है, और एक बात मैंने चालू की अभी, जैसे मेरा ब्रेकफास्ट होता है सुबह का, मेरा ब्रेकफास्ट क्या है, इज माई प्रोटीन शेक। एंड वो शेकर है जिसमें बटन दबा के प्रोटीन शेक चालू होता है। तो मैंने क्या किया है, द मोमेंट आई प्रेस द बटन फॉर द प्रोटीन शेकर, आई रीच आउट टू फ्रिज एंड आई टेक माई आई क्रीम एंड स्टार्ट रोलिंग। तो मेरे पास अभी वो ट्रिगर, इट्स दैट्स हाउ यू अटैच 2 थिंग्स टू फॉर्म योर लाइक अटैच दोज हैबिट्स। तो ये बहुत मेंटली आपके बैठ जाएगा, एवरी टाइम आई डू दिस आई हैव टू डू दैट। ठीक है, मैं अभी चैट पढ़ रही हूँ। यस आई विल यस, पक्का पक्का महावीर जी, मैं आपको शेयर करूंगी। आपको कुछ क्वेश्चंस है अभी, या यू कैन ऑल्सो राइट लेटर। ठीक है, ओके, थैंक यू। एंड देन बी कंसिस्टेंट, नॉट परफेक्ट। ठीक है, हमें एक दिन में सब कुछ अचीव नहीं करना है, तो हमें कंसिस्टेंसी, हैबिट बिल्ड करने के लिए ना कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। और ये वो वन थिंग किताब में भी लिखा हुआ है, जो सर ने भी सजेस्ट की थी, कि एक दिन मिस करो, ठीक है, मान लो आपका जो भी जर्नलिंग है, अफर्मेशन लिख रहे हो, मेडिटेशन है, एक दिन मिस करो, दैट्स ओके, बट 2 दिन ना मिस करो। फिर 2 दिन में चाहे तो 1 घंटे का ना करो, लेकिन 5 मिनट का ही सही, प्लीज आप किया करिए उससे, है ना? दैट्स हाउ वी फॉर्म हैबिट। मेक इट विजिबल, सो यूज, जैसे मेरे अभी यहाँ पे वॉल पे लिटरली आई हैव सो मेनी स्टिकीज, ये सारी चीजें, जैसे वंस अ चैंपियन ऑलवेज अ चैंपियन, लीव इन द हाईलाइट्स, उसके बाद मैंने लिखा है मेडिटेशन डन। सो ऑल मेक इट विजिबल, जैसे भी जितना भी आप ये विजिबल रखते हो ना, ऐसे स्टिकी नोट्स के साथ, आपके फोन के वॉल, जैसे भी, तो क्या होता है ना, आपको एक ट्रिगर मिलता है, अच्छा हाँ ये मैंने किया था, ये मुझे करना है, या दिस इज द गुड थिंग, राइट?
सो वी स्टार्ट डूइंग दैट, देन सेलिब्रेट स्मॉल विंस। जो भी आप कोई भी मान लो, अगर जैसे कुलदीप ने तुम्हारा एग्जांपल है, तुमने मंदिर साफ किया राइट, तो अपने आप को ना मिरर में जाके पैट योर सेल्फ, यस आई डिड इट। हम ना काम कर जाते हैं एंड फिर भूल जाते हैं हाँ मैंने काम किया। वी डू नॉट हैव दैट प्लेजर। हमें वो डोपामाइन हिट तो कहीं चाहिए ना, हाँ मुझे अच्छा लगा कब, अरे वाह बढ़िया आज तो मैंने कर दिया। जैसे ये सेशन के बाद मैं बोलूंगी हाँ वाह बढ़िया सेशन तो हो गया ना अच्छे से ना। तो ये हमें करना बहुत जरूरी है, अपने आप को अप्रिशिएट करो। डिजाइन योर एनवायरमेंट, ठीक है। तो हम क्या करें, व्हाट इज डिजाइनिंग योर एनवायरनमेंट, बहुत फैंसी टर्म है, बट व्हाट इट मीन्स, दैट मीन्स अभी मैं जहां यहाँ बैठ रही हूँ ना, मेरे पास, मैं आपको बाद में पिक्चर भेजूंगी, एक छोटी सी मैंने अमेजोन से एक मेरी टू डू लिस्ट बनाई है, और डायरी है जिसमें सिर्फ मैं अपने टॉप 3 हैबिट्स लिखती हूँ, बाकी तो मेरे होते हैं नो, बट टॉप 3 मेरे वहां पे है। उसके बाद जो बुक मुझे सुबह पढ़ना होता है तो मैं रात में उसको रख देती हूँ। मुझे जो भी जर्नलिंग करना होता है वो भी मेरा रात में वहां पे रखा दिया होता है। फिर मेडिटेशन के लिए सुबह मैं अपने ईयरपॉड्स जो है वो अपने फोन के बाजू में, मेरा पानी का ग्लास मैं रात में बॉटल भर के अपना ग्लास भी साइड में रख देती हूँ। ये सो डिजाइन योर एनवायरनमेंट। नहीं तो क्या होगा, मान लो सुबह में 4:30 बजे उठती हूँ, एक दिन में 5 बजे उठी हूँ, अरे बाप रे पानी लाना है, ये रखना है, वो रखना है, किताब कहाँ गई, मेरे ईयरफोन, इसमें हम उलझ जाते हैं। तो हमेशा डिजाइन योर एनवायरमेंट and do not rely, or last one is do not rely on motivation, build your system. So this is nothing but system, whatever you are doing, your night routines are very very important। हमेशा हमें लगता है कि मॉर्निंग का जो है एनर्जी दैट्स बेस्ट, हम लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है, बट द नाइट एनर्जी इज ऑल्सो इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रात में जब हम सोने जाते हैं, अगले दिन का जैसे हम विजुअलाइज करते हैं ना, हाउ वी वांट इट टुमारो, सिमिलरली अगले दिन की प्रिपरेशन। इनफैक्ट व्हाट आई स्टार्टेड रिसेंटली डूइंग इज, इवन इफ आई एम एट होम, मैं क्या कपड़े कल पहनूंगी, सुबह ना वो स्ट्रेस कम आ जाता है सारी चीजों का। अभी मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, डू इट टुडे, आई ऑल्सो शेयर समरी अबाउट दैट सून, बट उसमें ये लिखा गया है कि नाइट रूटीन इज द बेस्ट, वो फॉलो किया कीजिए। रात में आपको जो भी अगले दिन की पूरी प्लानिंग, अगर आपको खाना बनाना है राइट, तो क्या खाना बनाओगे, मैं बार बार खाने के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि यस बनाना पड़ता है ना, खाना तो बहुत बेसिक है तो फिर ये चीज है कि मैं ना, ये नहीं कि मैं खाना बनाऊंगी, वो तो आप बनाओगे ही सही है ना, लेकिन क्या मेनू होगा मेरा, है ना। अब ये जो मान लो किसी को बाहर से कुछ लाना है, जैसे सो थोड़ी देर पहले किसी ने बोला डी मार्ट से मुझे लाना है कुछ, हाँ बोलो अमिता। हाँ, कुछ क्वेश्चन है अमिता? हाँ हाँ, मैं वही बोल रही थी कि मतलब जो हम मतलब डेली टास्क हम जॉब करते हैं, तो ये वाला जो आपने बोला ना कि खाना बनाना है, वो तो दिमाग में मतलब वही बार बार ट्रिगर करता रहता है, कुछ लिखते कुछ हाँ मतलब प्रिपेयर करते रहते तो भी अच्छा कल सुबह में क्या खाएंगे और रात को मतलब क्या बनाएंगे, अभी घर पे कितनी सब्जी पड़ी है वो भी देखना है, तो मतलब वो सब दिमाग में कंटिन्यूअसली जब दूसरा काम करते तब दिमाग में वो बात चलती है ऐसा। करेक्ट करेक्ट, बहुत नॉर्मल है, बहुत बहुत होता है अपने अपने साथ, है ना। शायद जो लड़के खाना बनाते हैं उनके लिए भी होता होगा, या तो उनको ये स्ट्रेस होता है मैं क्या बनाऊं, है ना जो भी मम्मी है वाइफ है उनको क्या बोलूं, आज क्या तो हर किसी का एक अलग इसमें। तो इसमें आप वीकली ना एक अपना रूटीन बना सकते हो कि ब्रेकफास्ट क्या बनेगा। मैंने एक बोर्ड बनाया अपने, आई सेंड लेटर अ पिक्चर, कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, डिनर में क्या होगा, और नीचे से 4-5 अलग अलग आइटम जैसे डिस्कवर करते हैं ना कभी, हाँ ये कभी रैंडमली, अगर ये ना अवेलेबल है, मान लो मुझे आलू की सब्जी बनानी है तो आलू नहीं अवेलेबल है, तो मैं क्या उससे दूसरा क्या बना सकते हो, ऐसे उसके अल्टरनेटिव। अगर हम ये शुरू करेंगे ना, और धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि हमें एक दिन में पूरी दुनिया बदलनी है, नहीं ना है ना, लेकिन स्टार्ट करनी है। तो आप आज क्या कर सकते हैं, अभी ऑफिस में हो ना, अभी निकलने से पहले सोच लो कि क्या करना है। जब आप सोच लोगे ना मुझे क्या चीजें बनानी है, तो इमीडिएटली आधा स्ट्रेस तो इधर ही कम हो जाता है। बनाना में तो हम एक्सपर्ट है, हम अच्छा खाना बनाएंगे उसमें डाउट नहीं है, लेकिन क्या, है ना, वही क्वेश्चन है है ना। तो मोहन सर आपका क्वेश्चन था हैबिट्स को लेके, कुछ आपको और क्लैरिटी चाहिए उस पे? हाँ जी, मेरे को ये जानना था कि ये अपना जो, जैसे मैंने पहले बताया, हैबिट फॉर्म करना, अब जैसे सुबह वॉक पे जाना है या एक्सरसाइज करना है डेली, मेडिटेशन करना है डेली, वो कुछ दिन होता है फिर बीच में ब्रेक आ जाता है,
फिर कुछ दिन होगा, फिर वो आदत छूट जाएगी लंबे टाइम के लिए। ये मतलब एक कंसिस्टेंसी उसके अंदर कैसे डेवलप की जाए उसके लिए। हाँ, तो ये एक यहाँ पे पॉइंट, आप मेक इट विजिबल। आप क्या करो ना, आप जहाँ भी आपका ऑफिस है, या आप मान लो घर से बाहर जाते हो, कौन सी ऐसी जगह है मंदिर के पास, जहां पे भी जाते हो ना, उसके बाजू में ऐसे ये स्टिकी नोट्स आते हैं ना, ऐसे बना के रखो। उसमें क्या होगा ना, आपको वो वो रिमाइंडर लगेगा। नहीं, वो स्टिकी नोट्स के ऊपर ध्यान भी जाना चाहिए। हाँ, तो ऐसे मिरर पे रखो, ओके। कहाँ पे आपका ध्यान जाएगा। या तो फोन का वॉलपेपर बना दो, लिख लो ओके। आई नीड टू वॉक, ऐसी। यही होता है कि हम भूल जाते हैं। एक तो चीज होती है कि हम भूल जाते हैं, उसके बाद हम लोग ना खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि मैं कर ही नहीं पा रहा, डिमोटिवेट होने जाते हैं हम लोग। एंड देन हम छोड़ देते हैं चीजें कि नहीं, ये होगा ही नहीं। राइट। बट इट्स ओके, अब तक नहीं हुआ ना, अभी से, इस मोमेंट से, आज से हम स्टार्ट करेंगे फ्रेश। आज चाहिए, अगर मान लो अगर आप बाहर नहीं जा, जैसे मैं क्या करती हूँ अपना एग्जांपल, अगर मैं बाहर वॉक करने नहीं जा रही हूँ ना, अब कारण क्या होते हैं वो तो मैं जेन्युइन ही बोलूंगी ना अपने आप के, कि बाहर बारिश हो रही है, मैं पार्किंग लॉट में तो कर सकती हूँ ना वॉक, चलो वहां पे अंधेरा हो जाता है तो नहीं कर, तो मैंने अभी चालू किया घर पे वॉक करो। हम हमारा दिमाग ऐसा होता है ना, हम लोग बहुत एक्सक्यूजेस, मतलब हम लोग अपने आप को खुश करने के लिए, मैं नहीं कर रही हूँ तो कुछ कारण है। तो क्या अभी क्या करना है ना, घर में ही वॉक करना है, घर में 5 मिनट करो ना वॉक, क्या होगा। एंड देन टुमारो 10 मिनट्स करो, है ना, सुबह उठ के आप क्या करो, अगर आप चाय पीते हो, आपको चाय पसंद है सुबह। नहीं, चाय ग्रीन टी पीता हूँ मैं। ग्रीन टी ना, ठीक है, तो ग्रीन टी जब आप पीते हो ना, आप अपने आप को ये चालू करो कि मैं 5 मिनट वॉक करूंगा, उसके बाद ही ग्रीन टी पीऊंगा बस। तो यू विल कपल योर ग्रीन टी विथ योर वॉक, आज से, है ना। और उसके बाद शाम में आप जो भी खाना खाते हो, तो खाना खाने के पहले अगर आपके पास 15 मिनट होंगे, देन यू से कि ये 15 मिनट में वॉक करूंगा, नीचे जाऊंगा, टहल के आऊंगा, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। तो ये जब आप करते हो ना, जब भी आप प्लेट को हाथ लगाओगे ना, तो ऐसा होगा नहीं मुझे अभी जाना है, वॉक करके आना है। धीरे धीरे, ये इतना मैजिकल है, एटॉमिक हैबिट्स में ये एक्सप्लेन किया है, व्हेन यू अटैच टू हैबिट्स ना, अपने आप बॉडी अपने को सिग्नल भेजने लगती है। तो ये होगा, धीरे धीरे होगा। एंड अगर आपको बाद में भी कुछ लगेगा अराउंड दिस, फील फ्री टू रीच आउट एंड तुम्हें स्टार्ट करना है बात बस। पूछनी है हाँ बोलो। कि जो तुम कह रही हो ना ये बिल्कुल सही है। सर भी कहते हैं ना कि अपना एक रूटीन सेट करो कि बुक्स तभी पढ़ूंगा हाँ जब खाना, मतलब हाँ। खाना तभी खाऊंगा जब बुक रीड कर पाऊंगा, है ना। लेकिन मैं यस यहाँ पर यस। क्या होता है कि जब सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ ना, तो अगर मेरा कुछ पेंडिंग है तो वो क्या होता है पता है, मेरा मन बहक जाता है। चल मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, बाद में पूजा कर लूंगी। फिर पूजा छूट गई, अच्छा थोड़ी देर से कर लूंगी, थोड़ी देर में मतलब फिर वो 12 बज गए, फिर लगता है अब शाम को ही करूंगी, 12 बजे तो भगवान सो गए। वो नहीं सोता, ऐसा डोंट बहुत होता वरी। हाँ, तो है। अभी ना, अभी क्या करो ना, ये जो हम बहुत अच्छी बात कही, पता है मृदुला जी आपने, क्योंकि इनिशियली मुझे ये होता था, एंड देन आई रियलाइज कि ऐसी कौन सी हैबिट है जिसके साथ आपको कपल करनी है। जैसे खाना खाने के साथ ना, यूजुअली मैं कुछ नहीं जोड़ती, क्योंकि मुझे भूख लगती है तो मुझे, इंसान को खा जाओ, मुझे बहुत भूख लगती है, ठीक है, मुझे होता है कि मुझे वही खाना वही चाहिए अब, है वही। ना। तो मैं खाना खाने के साथ कुछ भी नहीं जोड़ती हूँ, ठीक है, कुछ कभी भी नहीं। ऐसी चीज जिसमें आपको पता है आप कंट्रोल ही नहीं कर पाए, मत जोड़ो, ठीक है। द ओनली थिंग मैं खाना खाने के साथ अगर कर सकती हूँ कि अगर कुछ दवाई लेनी है, तो उसके अलावा कुछ कुछ भी नहीं जोड़ना है खाना खाने के साथ। तो आप आपके उठने के बाद अगर आपके पास थोड़ा समय है ना, तो वह उसके साथ आप जोड़ो, कि मान लो आप उठने के बाद क्या, अगर चाय बना रहे हो, उसके बाद आपके पास टाइम है थोड़ा, ब्रेकफास्ट लगने से पहले, है ना, तो आप उसके साथ वो जोड़ो। और किसी को कुछ क्वेश्चंस। अब सुबह उठने का टाइम टेबल कैसे सेट करना है? हाँ, तो मैंने क्या किया था पता है, मैंने जब ये मेडिटेशन ज्वाइन किया ना, 3 महीने से ज्वाइन किया, राइट। हम्म, मैं उठती थी सुबह पहले 6 बजे, तो 6 से ओ, 7 बजे तक मैं अपना मेडिटेशन करती थी। फिर मेरी बेटी का स्कूल के लिए उसको 8 बजे उसको निकलना पड़ता है, तो मुझे उसको 7:20 को उठाना पड़ता है, राइट। तो वो 20 मिनट में मैं क्या क्या करूँ, मैं जर्नलिंग करूँ, मैं लिखती भी इतना स्लो हूँ कि मुझे आधा घंटा तो लिखने में जाता है। हाउ डू आई डू इट, राइट। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उसको, जो मेरे 6 से मेरा जो 5 से 6 था, उसको, सॉरी 6 से 7 था, मैंने उसको 5:30 किया, ठीक है। 5:30 से 6:30 किया, फिर मैंने देखा ओके, 5:30 से 6:30 में मेरा मेडिटेशन तो हो रहा है, लेकिन
फिर 6:30 से 7 तक मैं लिख रही हूँ, बट कभी कभी लिखने में मुझे एक्चुअली 40 मिनट्स लगते हैं पूरा सुबह का अपना राइटिंग करने के लिए। तो फिर उसके बाद क्या हो रहा था, 10 मिनट मेरे पास है, फिर 7:20 उसको उठाना, फिर जो भी प्रिपरेशन करना बहुत मेरे लिए हेवी हो रहा था। फिर मैंने 5 बजे उठना शुरू किया। फिर मेरा रूटीन बहुत अच्छा हो रहा था, 5 to 6 आई वेक अप, 5 to 6 तो मेरा मेडिटेशन, बिकॉज वी नीड 1 आवर ना मेडिटेशन के लिए। और फिर 6 to 7 में बहुत इजीली मैं घूम घाम के इधर अपना ग्रीन टी पी के सब करके फिर मेरा लिखने का हो गया। उसके बाद मुझे रीडिंग के लिए भी टाइम मिलने लगा। तो आई हैड दैट वेरी गुड रूटीन। फिर मन लालची हो गया कि अभी मैं सुबह इतना सब कुछ कर ही रही हूँ, तो मैं क्यों ना मैं 4:30 बजे उठना शुरू करूँ, है ना। बिकॉज आजकल तो बहुत सारी और भी चीजें करनी है, मैं कुछ किताबों पे भी काम कर रही हूँ। तो फिर मैं अब 4:30 बजे उठती हूँ। 4:30 से 5:30 मेरा मेडिटेशन हो जाता है। 5:30 से 6:30 मेरा जो भी लिखने का है वो हो जाता है। 6:30 से 7 मेरा जो भी रीडिंग है वो हो जाता है आधे घंटे का। एंड 7 to 7:20 मुझे चाहिए होता है कि इससे पहले कि मेरा घर बोलते हैं ना चालू हो जाए, मुझे 20 मिनट अपने साथ, फिर मैं फोन देखूं या जो भी करूं। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ 8 बजे से पहले नहीं देखना है फोन, पर जो भी मुझे करना है। तो आप कैसे करो ना, आप देखो आपको मॉर्निंग के लिए हर चीज के लिए कितना टाइम लगता है, एंड देन बैक ट्रैक। मान लो आप आपको कितने बजे ऑफिस के लिए निकलना पड़ता है श्रीदेवी जी? और कभी 10 बजे, कभी 8 बजे, कभी 7 बजे, एनी टाइम। ओके। तो 10 बजे 7, तो 7, जो भी मान लो इन बिटवीन, इफ आई टेक एवरेज 8 o'clock, है ना, 8 8 बजे। तो आपके सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन है, 1 घंटा तो अपना मेडिटेशन के लिए लगता है ना। तो आप 1 घंटा उसका मेडिटेशन का रखो। फिर अगर आप सुबह लिखते हो तो सुबह लिखने का आधा घंटा लिखते हो। आप मेरे से तो पक्का ही फास्ट लिखते होंगे। और उसके बाद नहीं आप नहीं, बिल्कुल। और उसके बाद आपका रीडिंग या जो भी आपको करना है तो बैक ट्रैक करो। अगर मुझे 8 बजे निकलना है, तो मुझे रेडी होने के लिए टाइम, फिर उसका मेरा ब्रेकफास्ट करने के लिए वो आप उसको आधा घंटा दे दो। और 7:30 माइनस 1 आवर मेडिटेशन, 6:30 माइनस 30 मिनट्स रीडिंग, 6 माइनस 30 मिनट्स राइटिंग, तो कितने हुए, ऐसे आप उसको कैलकुलेट करो। और ये धीरे धीरे स्टार्ट होगा। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर, ये क्या होता है कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तो किसी और को अकाउंटेबल, एक जैसे मान लो मैं आप हो राइट श्रीदेवी जी, और आपको चाहिए कि किसी चीज के लिए, या तो छोड़ो मैं अपना एग्जांपल शेयर कर रही हूँ, क्या हो रहा था मेरे साथ। जैसे मुझे 4:30 बजे उठना था ना, मुझसे 4:30 बजे उठना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मान लो किसी दिन मैं 12 बजे सोई हूँ, कोई गेस्ट आए हैं घर पे, या ऐसे ही नींद नहीं आई। अब फोन तो हम कोशिश करते हैं साथ में ना हो, ऐसे ही कभी तबीयत खराब, जो भी है रीजन, तो मैं 4 बजे नहीं उठ पा रही हूँ सुबह, या 4:30 बजे नहीं उठ पा रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? तो हरेंद्र जी है, वो अपने एमएम में भी है, फिर अपने हमारे 4M में भी है। नाउ ही इज माई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर टू वेक अप इन द मॉर्निंग। नाउ हाउ डज दिस वर्क? सो व्हाट हैपेंस एवरी मॉर्निंग व्हेन आई, एंड व्हाई ही इज अ पार्टनर, बिकॉज ही इज हैज बीन, उनके अभी 106 हुए होंगे ना डेज, कुलदीप, जो सुबह उठते हैं वो 4 बजे, आई थिंक 106 या 7, कंसिस्टेंटली वो रोज सुबह ही उठते हैं, ठीक है। तो बिकॉज इज सच अ गुड एट दैट हैबिट, तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ऐसा ही ढूंढो जो भी आपको मोटिवेशन भी दे, है ना, जो खुद 10 बजे उठेगा, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो सकता है कि बिकॉज ही इज ओनली काउंटिंग, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे मैं रोज सुबह उठती हूँ, तो आई मेक इट अ पॉइंट कि उनको मैसेज करूँ, डे जो भी मेरा चल रहा है, 2021 डे 21, आई वोक अप एट दिस टाइम एंड गुड मॉर्निंग, इतना ही मैसेज, उतना ही एक मैसेज मैं उनको करके फोन बाजू में। अब लेटली मैंने चालू किया है, मैं वो मैसेज उनको नहीं भेजती हूँ, मैं भेजती हूँ कब, मेरा सब कुछ होने के बाद। बिकॉज क्या होता है ना, फोन अगर मैं एक मैसेज उनके डालने के लिए मैं लूँ फोन हाथ में, तो और 4 मैसेज देखना हो जाता है। तो लेटली में मेरा सब कुछ होने के बाद, सो हैव अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। जैसे मुझे अभी स्क्रीन पे ऊपर दिख रहे, शिवी दिख रही है और अमिता दिख रहे हैं, right? आप दोनों एक दूसरे के अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। सुबह कितने बजे उठोगे तो आप बताओगे, लिख, और हमें क्या करना है ना, आज इतने बजे ऐसे नहीं, विथ डे 1 आई वोक अप एट 6 AM, आई वोक अप एट 7, या जो भी आपका जो भी गोल्स होंगे, बेसिकली मैंने रीडिंग की नहीं की। और डे 2 में मान लो, तो ये जो पार्टनर है वो क्या करेगा, ओके ग्रेट थैंक यू गुड, मोटिवेट करेगा आपको। और डे 2 को फिर आपको क्या करना है, वापस बताना है। और आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये जो पार्टनर का काम क्या होगा, सिर्फ मैसेज रिसीव करना नहीं, उसको बोलना, अरे डे 2 का कहाँ है मैसेज तुम्हारा,
रिमाइंड भी करना है अपने आप को, और अपने को बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसे कैसे इसने पूछ लिया, इसको क्या पता मुझे कुछ काम होगा ना। तो व्हेन इट्स अ पार्टनर, राइट, तो इट्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो डू इट लाइक दैट। अपना तो इतनी अच्छी सिस्टम है, आई एम सो ग्लैड सच अ बिग ग्रुप हैव अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। There was a question from the audience that how do I set up my routine? I feel like whenever I share the routine with someone, it breaks and I'm not able to do it consistently. और मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है ना, ये अपना बिलीफ हाँ सिस्टम, ठीक है। जैसे मैं अपना शेयर ओके करती हूँ, मेरा मेरा क्या बिलीफ था पहले, हाँ अगर मैं इंस्टाग्राम पे कुछ फोटो डालूं, ठीक है, या व्हाट्सएप पे कुछ स्टेटस डालूं, तो कुछ वो नजर लगने टाइप वाला बिलीफ होता है ना अपने सबके साथ, हमें सेम लगता है सेम सेम ये सेम होगा सेम ना, ये हाँ बिलीफ है अपना। दिस इज जो हमने एनएलपी में सीखा था, दिस इज योर बिलीफ सिस्टम, उसको हमें ब्रेक करना है। तो शायद ऐसा हो सकता है ये आपका बिलीफ है, अगर मैं शेयर करूँ ना किसी के साथ कि मैं इतनी सारी चीजें कर रही हूँ, तो फिर कुछ हो जाएगा और ये मेरा ब्रेक हो जाएगा, ये आपका बिलीफ है, ऐसे मुझे लगता है, ठीक है। आप इसको एक बार ऑब्जर्व भी करो, और हम टेक्निक भी बात करेंगे इसकी, कैसे इसको तोड़ा जाएगा, ठीक है। एक तो एनएलपी के कितने सारे प्रिंसिपल्स है, तो हमें क्या करना है, उनको रिवर्स करना है। जैसे कि आप बोलो अपने मैजिक ग्रुप में या कहीं में, जब भी मैं ये किसी से शेयर करूंगी, मुझे और दुगना मोटिवेशन मिलेगा, और मैं टास्क और भी आसानी से और स्पीड के साथ करूंगी। यू स्टार्ट ठीक है चेंजिंग दिस, ठीक है। और ये चालू करना, एक प्रैक्टिस। दूसरा है मेक इट विजिबल, जो भी आपको करना है ना सामने सामने रखो, क्योंकि कभी 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 ना सामने होता है, तो आई एम श्योर एंड आई नो यू कि दिखेगा ना, हम करेंगे, ठीक है। ये दूसरा चीज। और तीसरी ठीक है जो मैं अपनी बेटी के लिए करती हूँ, ये है कि मेरे पास एक बोर्ड है, तो उसमें हमने 1 to 30 हर मंथ में, हम जैसे मंथ चालू होता है हम लोग बोर्ड बनाते हैं उसके लिए, और एवरी डे का शी गेट्स वेदर अ स्टार और क्रॉस डिपेंड ऑन हर बिहेवियर। अब मुझे पता नहीं है ये आदत अच्छी है या नहीं है, लेकिन ये अच्छे से काम कर रही है, तो अगर उसने दिन में अच्छे से बिहेव किया, हम वहां पे जाके स्टार मार्क करते हैं उसके लिए। और अगर मान लो उस दिन किसी दिन अच्छे से, बच्चे को क्या ही रेट करना है, इसे लगेगा बट मेरे लिए ये हेल्प हुआ, अब मैं पढ़ूंगी इसके बारे में अच्छा है कि नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, एंड द डे व्हेन शी इज नॉट डूइंग इट, तो उसके लिए क्रॉस। तो ये हम सब अपने लिए भी कर सकते हैं ना, कि मैंने सारा किया, मेरा स्टार क्रॉस किया, क्रॉस। और होता क्या है इससे, एंड ऑफ एवरी मंथ, जैसे 31st आएगा, मुझे अभी इसको गिफ्ट खरीदना पड़ेगा 3 दिन में, एंड ऑफ द मंथ अगर उसको लेस देन 3 क्रॉस है, तो आई बाय हर अ गिफ्ट, वो मेरे साथ आती है, हम कुछ खरीदते हैं उसके लिए। या तो अभी लेटेस्ट उसको एक लेगामी पेन की सीरीज है, तो मैं उसको हर मंथ, है कितना वो, 2 यूरो का ही पेन है, बात पैसे की नहीं है, लेकिन बात ये है उसको पूरा कलेक्शन चाहिए 12 या 13 पेन का, वो मैं उसको ओवर द ईयर ही दूंगी, क्योंकि एक साथ देंगे तो मजा भी नहीं है। और अभी कैसे उसको मुझे ज्यादा स्टार करने हैं, तो मैं ये करूंगी। तो वैसे आप भी एक मोटिवेशन, हम सारे ही, मान लो मुझे कुछ साड़ी खरीदने है, कोई ड्रेस खरीदना है, या मुझे कहीं जाना है, या जो भी फेशियल करना है, जो भी करना है, मैं तभी करूंगी जब मेरे लेस देन 3 क्रॉस आएंगे। ये भी एक टेक्निक हो सकती है। और जो बिलीफ का जो है ना पहला, वो आप रिवर्स करना चाहिए, वेन एवर आई शेयर आई गेट मोटिवेशन एंड आई डू माई टास्क मोर फ्लॉलेसली। ये आप अपना ही, जैसे मैंने चालू किया, मेरा जब भी सोशल मीडिया पे डालना है या जो भी, अब तो मैं इतना खुल के सब सारी चीजें कर रही हूँ ना, बिकॉज मैं हमेशा वेन एवर आई डू दिस आई एम लाइक, ऐसे इमेजिन करो यू आर गेटिंग मोर एनर्जी एंड यू आर डूइंग इट बेटर। इससे बहुत मुझे हेल्प हुआ पर्सनली। जो मैंने रिसेंटली, मैं कुछ कर रही थी ऐसे, वही बोलते हैं ना आइडिया वाली बात, और मेरे दिमाग में आई और मैंने उसको चालू किया, इज दिस। अगर मुझे कोई अच्छा बोलता है, अगर मुझे कोई बुरा बोलता है, ठीक है, हम क्या करेंगे आज से ना, एक फिल्टर लगा लेंगे बीच में, यहाँ हम हैं, वहां यहाँ वो इंसान है, और बीच में एक फिल्टर है। अब वो फिल्टर क्या है, वो फिल्टर है जो भी भगवान आपको मानते हैं, ठीक है, जो भी जिसको भी आप मानते हो, शिव जी है, गणेश जी, जो जिसको भी आप मानते हो ना, मान लो कि मुझे किसी ने बात कह दी, ठीक है, मान लो अभी शिविर ने मुझे बता दिया कि दीदी आप बहुत अच्छा बात करते हो, ठीक है, ये बात ऐसे ऐसे बिहेव करो कि भगवान ही मुझे कह रहा है ये बात, मुझे कैसे लगेगा, हाँ थैंक यू सो मच आपने ऐसे कहा। सिमिलरली मान लो मुझे शिवी बोल रही है अभी, दीदी आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप इस ऐसे करो, मैं ये बोलूंगी भगवान मुझे ये कह रहे हैं, मुझे क्या होगी मेरी एनर्जी, अच्छा भगवान बोल रहे कुछ तो बात होगा ना, मुझे देखना पड़ेगा, स्टार्ट डूइंग दिस।
ये मैं ऐसे वो आइडिया लॉग में मैंने एक बार रखा कि मैं कैसे इन चीजों को हटाऊं, बिकॉज आजकल ऐसे हो रहा है ना कि हम लोग एकदम वन टू वन और बहुत फास्ट रिएक्शन आ जाता है। जैसे नजर की भी बात कर ली, या आपने जैसे बात कही ना कि मैं अच्छा कर रही हूँ और मैं किसी को बताऊं तो मेरा रिवर्स हो जाता है। तो आप ये इमेजिन करो, बीच में जो भी आपके भगवान है वो आपको बता रहे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कितना अच्छा फील होगा, ये एनर्जी चेंज होगी। और इसके लिए कुछ स्टिकी लगाओ कहीं पे, बार बार रिमाइंड, हम भी एक दूसरे को रिमाइंडर दे सकते हैं ना, भगवान से बात की कि नहीं, है ना। तो ये जब भाव चेंज, सही कहा आपने नीलेश जी ने नो, सभी में ईश्वर का भाव, ये जब आ जाएगा ना अपनी बहुत लाइफ, ये अच्छी चीजों के लिए भी है। अगर हम कभी बहुत अच्छा भी कर रहे हैं ना, हम झाड़ पे भी नहीं कभी चढ़ेंगे, बिकॉज वी नो ग्राउंडेड कैसे रहना है। भगवान बता रहा है कि हाँ तुम अच्छा कर रही हो और अच्छा करो, है ना। भगवान बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हमें ना, ये पर्सपेक्टिव हमें चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, कोई बीएसआर भी कहते नहीं, पता था, ओके, गुड, वेरी गुड। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट एंड आई एम श्योर हमें इससे हेल्प होगी। आई रियली लाइक दिस कन्वर्सेशन, थैंक यू मृदुला जी, आपने ये टॉपिक छेड़ा और इसके बारे में इतनी अच्छी बात हुई। थैंक यू, क्योंकि मैं हम्म जूझ रही हूँ इससे, इसलिए मुझे लगा कि आज ये टॉपिक छिड़ा है कि रूटीन से रिलेटेड हम्म। ही है ना मेरे तो। हाँ नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। हाँ कुलदीप, आप आपका कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था कि मतलब जो आपने टास्क लिखे हैं हम्म तो हम्म उनको जैसे रोज रिव्यू कैसे करें। मैंने ये सोचा था कि विजन बोर्ड जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो हम्म उसमें एक दिन विजन बोर्ड प्रैक्टिस करूँ और एक दिन वही टास्क उधर ही मैं तो रूम में कहीं ऐसी जगह हम्म विजन बोर्ड लगाया जो मतलब बहुत ही हम्म ज्यादा दिखता भी नहीं है, तो वहाँ वहाँ हम्म पे ये टास्क रखूँ। और मतलब बड़े बड़े टास्क है काफी, तो मतलब मेरे कंट्रोल में भी नहीं है ऐसे। तो तो अभी सबसे, हाँ बोलो, आप पहले तो कंप्लीट करो। तो एक दिन विजन बोर्ड का वो करूँ और एक दिन वो सारे टास्क विजुलाइज करूँ, तो ये नहीं चलेगा? अब, नहीं नहीं, देखो, ये दो अलग बातें हैं। आप कर रहे हो बहुत अच्छा है, विजन बोर्ड को विजुअलाइज करना, दोज आर योर ड्रीम्स, है ना, ये आपके सपने हैं। एंड दिस इज अ डिफरेंट दैन डूइंग आपके टास्क। अब आपके टास्क लिस्ट में मान लो कुछ काम है, राइट, यू हैव अ पेट्रोल पंप की किसी के सैलरी देना है, दैट इज योर टास्क, ठीक है। नया पेट्रोल पंप खरीदना होगा आपको, दैट इज योर विजन, उसके टुवर्ड्स काम करना है, तो वो आपके विजन बोर्ड पे रहेगा एंड यू विल कीप विजुलाइजिंग कि ये क्या है। मतलब मेरा एक नया पेट्रोल पंप मैंने और एक ले लिया, मान लो ये आपका ड्रीम है, वो आपके विजन बोर्ड पे है। लेकिन फिर हम इसको इंस्पायर्ड एक्शन जैसे सर बोलते हैं, या टास्क, आपका टास्क क्या होगा। मेरा जो अभी का है उससे मुझे नई जगह देखनी है ना, ये आपका आ जाएगा, टास्क में आ जाएगा। तो ये विजन बोर्ड कंप्लीट डिफरेंट। विजन बोर्ड जब कर रहे हो तब ये एनर्जी नहीं लगानी है कभी भी मैं कैसे करूं, बस फील करना है। अदरवाइज देर इज नो यूज ऑफ विजन बोर्ड। इट इज ओनली अबाउट फीलिंग, यू नो, हाउ डू यू फील। ये सपनों को देख के आप ये जब हकीकत में हो जाएंगे तब आपको कैसा फील होगा, दैट इज योर विजन बोर्ड, ठीक। क्या करेंगे, अपने आप का एनर्जी, फिर आपका पूरा दिन खराब होगा, फिर हम क्या करेंगे, नहीं ये हुआ ही नहीं, फिर ये नहीं होगा, फिर नेक्स्ट आएगा कि पापा से बात, वो भी नहीं, हमारी एनर्जी ही पूरी निगेटिव हो जाती है, पर नॉट निगेटिव बट पूरी डाउन हो जाती है, ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। और अभी एक है रिफ्लेक्शन का टॉपिक, और बहुत आई थिंक हम इस पे ये कर पाएंगे रिलेट सारे ही, कि वी ऑफन फील वी आर बिहाइंड बिकॉज वी आर वॉचिंग अदर्स, है ना। सारे ग्रुप पे टास्क डाल रहे या सारे रोज मेडिटेशन कर रहे और मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये होता है कंपैरिजन। कई बार अपने स्ट्रेस का कारण, और या जो हमें फील होता है इसका कारण होता है कंपैरिजन। अपना पर्सनल शेयरिंग अगेन, ये जो ऐप है राइट सर का, डॉक्टर अमित कुमार, जिसपे हम लोग रोज हैबिट्स है एंड देन वी मार्क, मेडिटेशन हुआ है, ये हुआ है, ये सारी चीजें हम मार्क करते हैं ना, जो भी चीजें 9 अपनी हैबिट से वी मार्क दैट। तो इनिशियली जब ऐप आया था ना, नया नया जोश जोश था, मैं रोज रोज करती थी। फिर मैं ट्रिप पे कहीं चली गई, मैंने 10-12 दिन कुछ मार्क नहीं किया, फिर मैंने देखा मैं रैंकिंग में नीचे हो गई थी। देन एक लगता है ना कि हाँ मैं अभी नीचे, अब पता है, आई डू नॉट नो व्हाट इज माई रैंक, आई हैव स्टॉप वॉचिंग इट। एंड अगर मैं अभी देखूं भी, मुझे किसी ने उस दिन बताया था कि हाँ 11-11 स्कोर था, यू आर ऑन थर्ड, आई टुक एज अप्रिसिएशन एंड देन आई सॉ इट,
लेकिन आज मैं देखूं ना तो मैं कंपेयर नहीं हूं, भले मैं 3 में हूँ, 4 में हूँ, 5 में हूँ, 6 में हूँ। आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद अदर्स, आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ विद माई सेल्फ राइट नाउ। कि कल मैंने अपने सारे टास्क किए थे, क्या मैंने आज किए हैं, और नहीं किए तो ठीक है, मोटिवेट आवर सेल्फ एंड लेट्स गो आगे। हम सबसे बड़ी गलती ये होती है, हम जब भी करते हैं ना, ये होता है ना सबके साथ, कि हम कंपेयर करते हैं दूसरों से ना, नहीं करना है कंपेयर, अपने साथ ही कंपेयर करो। और कंपेयर करते रहेंगे, अब तो हम एनर्जी के बारे में जानते हैं, वी विल बी इन अ कांस्टेंट कंपैरिजन मोड ऑलवेज, वी विल नेवर बी अहेड। कंपेयर विथ योरसेल्फ, ठीक है। एंड ये था आज के लिए। तो अभी लास्ट जो था, एक थॉट शेयरिंग इज, टास्क जो है वो आपका डे शेप करते, राइट, व्हाट यू विल डू, बट हैबिट्स जो है दैट विल शेप योर लाइफ, एंड सॉर्टिंग देम विल गिव यू पीस। सो हैबिट्स फॉर्म करनी है, आई विल शेयर ऑल द मटेरियल्स, focus on habit forming and how do we do it in a healthy way, not in a competitive way. एंड आप सबसे मैं आज एक चीज चाहती हूँ, वो ये है कि एक कोई तो टास्क है, अभी भी कितना, आई थिंक हमने सेशन थोड़ा लंबा चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छे कन्वर्सेशन हुए। तो आप एक टास्क करेंगे, ठीक है, कोई भी टास्क, जो भी छोटा टास्क है ना, डिनर बनाना, लंच बनाना, जो भी है, और मुझे मैसेज भेजेंगे, हाँ मैंने आज ये टास्क किया है, ठीक है, सारे जितने भी जुड़े हैं ना, ठीक है। Thank you for joining today. Next, we will talk about time management. Since we learn a lot about tasks, we will see how do we manage the task. And once again, thank you everyone for listening. See you next time. Have a good day. Bye bye.